start a new topic in chapter number 3, and the topic's name is law of chemical combination. Okay, so what do you understand by chemical combination? Chemical combination is nothing but if two or more than two elements they combine and they result into a compound, or if we are taking few reactants they will result into some products. मतलब हम इनपुट में कुछ ले रहे हैं एंड दोज इनपुट्स आर केमिकली कंबाइंड और हमें कुछ आउटपुट में दे रहा है. सो दैट इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन. सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाज गिवन बाय टू scientists, and the name of the scientists were Antoine L. Lavoisier and Joseph L. Proust. So there are two laws under this law of chemical combination. The first law is law of conservation of mass, that was given by Antoine L. Lavoisier in 1785, and the second one is law of constant proportion, that was given by Joseph L. Proust in 1793. So actually at the end of 18th century, scientists knew that they recognized the difference between elements and compound. Okay, so and till that this year, like till that time, scientists have discovered about metal, non-metal, acid, base, etc. But they didn't have much information about gases. So जब इनको gases के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, then लेवोजियर जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दी. उन्होंने बताया रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द कंबशन. उन्होंने बताया कि किसी भी कंबशन में ऑक्सीजन ही एक मेन गैस है जिसकी वजह से कंबशन पॉसिबल है. ठीक है. सो ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1778. उसके बाद ही केप्ट ऑन रिसर्चिंग अबाउट गैसेस और उन्होंने एक नई गैस का पता लगाया और उसका नाम दिया हाइड्रोजन इन 1783. सो few people, that is the reason people say that Lavoisier is the father of modern chemistry, since he started the discovery about these two gases. और लेवोजियर के ही अंडर में असिस्ट करते थे, उनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट. सो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो ये क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इसका मतलब है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, सो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट दे आर कंजर्व्ड. मतलब कोई भी डिस्ट्रॉय मास नहीं होगा एंड नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ दिस कंबशन ऑफ कार्बन. सो आई हैव टेकन कार्बन एंड ऑक्सीजन. Carbon dioxide. So suppose I have taken 8 gram of carbon and 3 gram of oxygen, then carbon dioxide gas will be 11 gram. So what does it mean? That see the input grams, जो इनपुट में हमने कार्बन और ऑक्सीजन लिए थे, मतलब जो हमने रिएक्टेंट लिए थे, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड दिस इज नोन एज प्रोडक्ट. जो हमने 8 ग्राम्स और 3 ग्राम्स रिएक्टेंट्स लिए थे, उसने 11 ग्राम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया. ओके. ऑल दो सम एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज. आपको पता है कि कंबशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. सो एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज बट मासेस विल बी कंजर्व. सो दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कि इस पूरे रिएक्शन में आपने देखा कि कहीं से भी मास ऐसा नहीं हुआ है कि मास कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी हो उसका मास कम हो गया या बढ़ गया हो. इट मीन्स दैट एटम्स के नॉट बी, इट मीन्स लाइक आई विल यूज दैट वर्ड लेटर ऑन. इट मीन्स दैट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन देयर इज द मास इज नॉट created and it is not destroyed during the chemical reaction. Okay.
one more example I would like to take, that is from your this NCERT book. So in this it is saying that in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate react with 6 gram of acetic acid. Okay. Conservation of mass. What it is saying that I have taken the reactants are sodium carbonate. See, I am writing the chemical name of the substance. Okay, this is sodium carbonate. Sodium carbonate and acetic acid. This is what you just, this is very beginning. I know that most of the students, they don't know about these how we are representing any compound, but I am using this because you used to see this, that what I am writing. This is acetic acid. Okay, what it will result? It will result into sodium acetate and carbon dioxide and water. Okay, so I have taken how much sodium carbonate? 5.3 gram. 5.3 gram of sodium carbonate I have taken. And what is the amount of acetic acid? It is 6 gram. Okay. And how much sodium acetate I am getting? I am getting sodium acetate 8.2 gram. 8.2 gram sodium acetate. This is sodium acetate and 2.2 gram of carbon dioxide. And water is 0.9 gram. Okay. So just add this reactant. जो हमने इनपुट में जितने भी कंपाउंड्स दिए हैं उनका जो अमाउंट है just add it. How it will come? Like what is the amount? It will be 11.3 gram. 5.3 plus 6. It will turn out 11.3 gram. Okay. जो हमने रिएक्टेंट लिए थे उनका टोटल जो मास आया है वो 11.3 आया है. अभी सोडियम एसीटेट 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे आप. इट इज ऑल्सो कमिंग आउट सेम. देखिए आपने सारे प्रोडक्ट में जो आपने रिएक्टेंट लिए थे उनका सम कर लिया, 11.3 ग्राम आया. और जो आपका प्रोडक्ट था उसमें जो भी प्रोडक्ट में आपके जितने भी प्रोडक्ट थे, सोडियम एसीटेट था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, इसमें जो भी आपके जितने जितने ग्राम थे उसको आपने ऐड किया, उसमें भी आपका आया 11.3. सो व्हाट डज इट शो? इट शो द लॉ दैट कंजर्वेशन ऑफ मास. आपने देखा कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया था आपको उतना ही प्रोडक्ट मिला है. ऐसा नहीं हुआ है कि प्रोडक्ट कुछ बढ़ गया हो या कुछ घट गया हो. यानी कि जो आपका प्रोडक्ट मास है इस पूरे केमिकल रिएक्शन का दैट विल रिमेन सेम. इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स दिए, एक कार्बन के कंबशन का और एक जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, क्वेश्चन गिवन है अनसॉल्व उसका लिया. ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द अनदर लॉ एंड द नेम ऑफ दैट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो कहता था कि आपका जो मास है
रिएक्शन का that is conserved. Okay, it cannot be created or it cannot be destroyed during a chemical reaction. Okay, तो ये तो आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दैट वाज गिवन बाय लेवोजियर. बट दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये उन्हीं के असिस्टेंट उन्हीं के साथ जो रिसर्च वर्क कर रहे थे उन्होंने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने. ठीक है. सो व्हाट डज इट से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? इसमें ये है कि व्हेन 2 or more than 2 elements combined, ओके, तो जब उनका कॉम्बिनेशन होता है तो उसका जो प्रोपोर्शन रहता है, मतलब जो अमाउंट रहता है, दैट इज फिक्स्ड. अगर कोई भी सोर्स से अगर आप पानी ले रहे हैं तो जो वाटर है H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 ही रहेगा. चाहे आप टैप वाटर ले लें, चाहे आप रिवर का वाटर ले लें, चाहे पॉन्ड का ले लें, चाहे वेल का ले लें, the ratio of masses of hydrogen and oxygen will remain 1:8. ओके, अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से इनके मासेस का रेशियो निकालते हैं. तो इन्होंने यही कहा कि in any chemical substance the element which are taking part in that chemical reaction, their amount is definite, like they will be present in the definite proportion or constant proportion by mass. Okay, इसका नाम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी है, क्योंकि इनका जो मास का बाय मास जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट. ओके, दैट इज डेफिनेट. जैसे मैंने वाटर कर लिया, अब देखिए कैसे निकालेंगे. जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 यूनिट. एंड एज यू कैन सी दैट 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 यूनिट. और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:8. ओके, और इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन H2O है तो पहले जो एलिमेंट आया है उसका हम ऊपर लिखते हैं और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है उसे हम नीचे लिखेंगे. ओके, सो दिस इज 1:8. अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज अमोनिया NH3. लेट्स सी, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो आता है. अब देखिए, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है वो है 14 यूनिट और हाइड्रोजन का कितना है, 1 यूनिट, और 3 हाइड्रोजन आइटम है यानी कि 3 यूनिट हो गया. सो व्हाट इज द रेशियो, जो नाइट्रोजन पहले तो नाइट्रोजन को ऊपर लिखेंगे और हाइड्रोजन को नीचे लिखेंगे. सो इट विल टर्न आउट 14:3. ओके, यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 14:3 के रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे. एंड दिस इज द डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये इसी रेशियो में किसी भी सोर्स से अमोनिया हमें मिली हो, अमोनिया का जो प्रोपोर्शन है वो यही रहेगा. नाउ आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक है, अब तो पहले ये देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे कैसे मिल सकती है. एक तो तरीका है कि कार्बन का कंबशन हुआ तब भी ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा. ठीक है, या हम लाइमस्टोन का हीटिंग कर दें. लाइमस्टोन, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, हीटिंग को हम इससे डिनोट करते हैं. ओके, तो जब हम हीटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विकलाइन. सी, ट्राई टू रिमेंबर दीज टर्म्स ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को ये सारे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज क्विकलाइन. तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग करेंगे तो क्विकलाइन बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ओके, तीसरा हो सकता है आपका कि आपने मार्बल्स ले लिए, यानी कि आपने लाइमस्टोन ले लिए, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और उस पर डाइल्यूट HCl डाल दिया.
अगर डाइल्यूट एसिड डाल दिया है तो कैल्शियम क्लोराइड बना, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बना एंड वाटर। ओके, तो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे हम इस तरीके से बनाए कार्बन के कंबशन से, चाहे हम लाइमस्टोन को हीटिंग करके बनाए, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन पे ही हम HCl डाल रहे हैं। 3 तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है ना, हमने 3 एग्जाम्पल लिए। अब देखिए कि इनका क्या सबका प्रपोर्शन एक ही आएगा, क्योंकि हमें इसमें सोर्स से मतलब ही नहीं। मैं तो केवल इसकी बात कर रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना यूनिट क्या मास, एटॉमिक मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। ओके, और इसमें देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है तो हो गया है 32 यूनिट। ओके, एंड व्हाट विल बी द रेशियो, द रेशियो विल बी, पहले कार्बन आ रहा है इसलिए 12 लिखेंगे, और उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है यानी 3। सो व्हाट विल बी द रेशियो, इट विल बी 3/8, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। ओके, इसीलिए मैंने अपने एग्जाम्पल में भी कार्बन को 3, ओके, आप इसमें ये देख सकते हैं कि अगर आपने कार्बन 3 ग्राम लिया है तो आपको ऑक्सीजन 8 ग्राम लेना पड़ेगा। 3:8 के रेशियो में वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपने ये रिएक्शन लिखी है तो आपने अगर 3 ग्राम लिया है और ये 8 ग्राम लिया है तो ये 11 ग्राम बनेगा। ओके, अगर मैंने इसको ले लिया है 9 ग्राम तो ये कितना लेना पड़ेगा, या 24 ग्राम। ओके, आप ऐड करके निकाल सकते हैं। यानी देखिए 9/24, दिस इज ऑल्सो टर्निंग 3:8। तो 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो जब भी हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसमें इसके आगे की थ्योरी इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ओके, और उन्होंने क्या किया, जॉन डाल्टन ने जो अपनी जो थ्योरी दी उसमें लेवोजियर और प्राउस्ट के जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉज थे उनको ऐड कर लिया। सो व्हाट वाज एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन in 1808. ओके, सो एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन। एक तो मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इन्होंने जो 2000 ईयर्स तक जब लोगों का बिलीव था, जो एरिस्टोटल ने कहा था कि एटम्स, अर्थ, एयर, वाटर, ओके, इन चीज़ों से बना हुआ, तो जॉन डाल्टन ने कहा कि जस्ट सो जॉन डाल्टन ने, जो कि आफ्टर people kept on believing for 2000 years that what Aristotle said about matter, जो एरिस्टोटल ने मैटर के बारे में कहा था कि मैटर अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर से मिलकर बना हुआ है, ये एरिस्टोटल ने कहा था। तो उनके इस बिलीफ को तोड़ा कि नो, ये जो हमारा मैटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ very tiny particles and those particles are known as atoms and atoms are indivisible. Okay, although we know that atoms can be divided into its further subatomic particles. ठीक है, पहले लोग यही बिलीव करते थे कि एटम्स जो हैं वो अनडिविजिबल हैं, इनडिविजिबल हैं, उनको
फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट नाउ वी नो दैट एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। ओके, सो व्हाट वाज द थ्योरी गिवन बाय सर जॉन डाल्टन? इन्होंने कहा कि द फर्स्ट लाइक he had given one atomic theory and the postulates for that theory is, सबसे पहला इन्होंने क्या कहा कि matter is made up of very tiny particles and those tiny particles take part in any chemical reaction. Okay, and the second one is that these particles cannot be further divided, like atoms are indivisible. Okay, and the atoms cannot be created or destroyed. And the third one is, he said that the atom of any element is same. इसका मतलब है कि अगर आपने सपोज गोल्ड लिया तो गोल्ड के सपोज आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया तो 1 ग्राम गोल्ड में सारे के सारे एटम, 1 ग्राम गोल्ड में बहुत सारे एटम होंगे। ओके, और अभी हम आगे पढ़ेंगे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितने एटम्स होंगे। वी विल फर्दर कैलकुलेट इसका एक जो लॉजिक है उसको हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड में जितने भी एटम्स होंगे दे आर आइडेंटिकल इन नेचर। ओके, इसमें मतलब जो भी एटम्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं जिनका बना है ये गोल्ड, इसके जो भी एटम होंगे दे आर आइडेंटिकल, they are having the similar physical and chemical properties, identical, they are identical in nature। और इन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट क्या दिया कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उनके एटम डिफरेंट होंगे। ओके, अब जैसे अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले लिया और हमने 1 ग्राम सिल्वर ले लिया, तो जो गोल्ड का एटम है और जो सिल्वर का एटम है दे आर डिफरेंट इन नेचर, दे विल शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और द लास्ट पोस्टुलेट गिवन बाय जॉन डाल्टन इज दैट कि अगर हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, इफ इट इज़ मेड अप ऑफ 2 or more than 2 elements, so those element will be presented in that compound with some constant proportion, some definite proportion, as we had taken the example of water, ammonia and carbon dioxide कि अगर हम वाटर लेंगे तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। अगर हम अमोनिया लेंगे तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 14:3 होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा। ओके, तो ये इन्होंने सारे पोस्टुलेट दिए। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसमें भी हमने लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा। ओके, थैंक यू।